Hello everyone, my name is Kalpana Pandey. I've secured an All India rank 10T2 in UPSC CSE 2022 and I'm looking forward to this conversation with you. So first of all, I want to share about me. I've done my BA program in political science from Aryabhat College, University of Delhi, and I completed my graduation in the year 2020. I started preparing for UPSC in 2019 and around the last year of my college. So it was with college I was studying for the exam as well. And my optional is also political science and international relations. So my graduation subject helped me. Okay, I think I should begin by just telling you that how I began with my preparation. Initially, I spent like a month researching about the exam, knowing the syllabus and the PYQs. So anyone who is starting off as a beginner, I would suggest you to please first download the UPSC syllabus, know it, read it, and then see the PYQs and then go about it. आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, सिलेबस लीजिए और उसके बाद अपने रिसोर्सेस आप डिसाइड कीजिए. मैंने अपने रिसोर्सेस कुछ इस तरीके से डिसाइड किए थे कि आई सॉ फ्यू टॉपर्स टॉप, रेड फ्यू ब्लॉग्स ऑफ टॉपर्स, और फिर जो भी कॉमन चीज़ें सभी टॉपर्स ने बताई थी उसके अकॉर्डिंग आई डिफाइन माई रिसोर्सेज. When I started preparing, I was in college. So the first thing that I started with was my optional political science, because I was also reading the same sort of books for my college as well. So it helped. My major source for my optional I'll start with. It was political science and international relations, and my major source was Shubhra Ranjan ma'am's notes. Along with those notes, I also selectively read books recommended by ma'am. Actually, I had taken the postal correspondence notes of Shubhra Ranjan ma'am. तो उसमें गूगल ड्राइव में देर इज़ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जिसमें मैम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे बी एल फादिया है, इन सब की रीडिंग्स देती हैं, तो वो भी मैंने सेलेक्टिवली पढ़ी थी. बट मेजर सोर्स थे जो वो थे मैम के नोट्स ही थे. उसके बाद आई टेक योर डाउट इन जस्ट अ मोमेंट. एंड देन येस, इम्पॉर्टेंटली विद इट वॉज द PYQ बुकलेट. एक ऑप्शन की बुकलेट आती है जिसमें सारे PYQs विद द सिलेबस दिए होते हैं. So that book used to always be with me while I was reading a particular topic, so that once I read a particular topic, I check the PYQs, whether I am able to solve the PYQs with whatever knowledge I've gained or not. अगर वो PYQ I am not able to solve, तो I'll again go back to the topic. सी की क्या लिखना है, क्या नोट्स कंप्लीट है या नहीं है, क्या मुझे टॉपिक समझ में आया या नहीं आया. सो दैट इज़ हाउ आई यूज़ टू गो अबाउट विद माई स्टडीज़. समबडी इज़ आस्क्ड मैम कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, 4 to 5 डेज ऐसा होता है. जैसे आई थिंक दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज बहुत मोनोटोनस आपका रूटीन हो जाता है ड्यूरिंग दिस एग्ज़ाम साइकिल, और ये सबके साथ होता है. बट फॉर दिस आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप ब्रेक्स लीजिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं. आप अपनी पढ़ाई को रिगरस इतना वो मत कीजिए कि आपके ऊपर एक बर्डन आ जाए कि बस मुझे पढ़ते ही रहना है. एवरी डे टेक 1 or 2 hour break, pursue your hobby, do something, go out with your friends or spend time in the nature. जो भी आपको चीज़ें रिलैक्स करती हो, म्यूज़िक सुनना या कुछ भी, वो आप ज़रूर परस्यू कीजिए, क्योंकि आपको थ्रू आउट द डे एक ब्रेक चाहिए होता है आपकी पढ़ाई से. उससे 2 चीज़ें होती है, एक तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, और फिर एक गिल्ट फैक्टर होता है कि मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट कर लिया, तो नाउ लेट मी गो बैक टू स्टडी एंड रीड इट मोर इफेक्टिवली. तो दैट इज़ हाउ यू मेंटेन कंसिस्टेंसी. यू कैन ऑल्सो टेक अ ब्रेक in a week or 2. Alright, I was discussing about my optional. So this was my major source. How I went about with my optional, I've already told you. PYQs are very important, because optional में somehow the PYQs get repeated, and not just get repeated, but they're just tweaked and twisted here and there, and they're asked in the same manner. And optional is a major portion of the entire marks that you get in the mains. That cannot be neglected. So while I was studying, तो मेरा पहला फोकस था कि मैं ऑप्शनल कंप्लीट करूँ. तो आई टुक अराउंड 6 months. मैम प्लीज़ हिंदी. ओके, आई कीप इट बाइलिंगुअल. तो इनिशियली जो 6 months थे उसमें मैंने अपना ऑप्शनल कंप्लीट किया, और उसमें ऑप्शनल कंप्लीट करने का पार्ट यही था कि नोट्स पढ़े थे, अच्छे से समझे थे, उसके शॉर्ट नोट्स कर लिए थे, जो टॉपिक्स के लिए ज़रूरी थी वहीं पे, बाकी नहीं. और उसके साथ साथ PYQs देख लिए थे और सॉल्व भी किए थे.
तो इनिशियली 6 मंथ्स मैंने ऑप्शनल को दिए थे। मैं इसके साथ जीएस पढ़ रही थी, लेकिन इतने इफ़ेक्टिवली नहीं पढ़ रही थी। उसके बाद जीएस वाला पार्ट इफ़ वी स्टार्ट, तो जीएस 1, 2, 3, 4। आफ्टर रीडिंग माई ऑप्शनल फॉर अराउंड 6 मंथ्स, ऑप्शनल पीएसआईआर है, हमें पीएसआईआर के लिए स्टार्ट करना चाहिए या फिर एक बार जीएस। एक्चुअली अगर मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन देना हो तो मैं कहूँगी कि आप पीएसआईआर के साथ स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पीएसआईआर एक बहुत ही डायनेमिक सा ऑप्शनल है। उसमें आपके बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, जैसे कि आपका GS1 का इंडियन नेशनलिज्म वाला पार्ट है, और मूवमेंट्स वाला पार्ट है, वुमेन मूवमेंट, वर्कर्स मूवमेंट, और उसके बाद आपका GS2 तो कम्प्लीटली उसमें मर्ज होता है अलॉन्ग विद IR पार्ट ऑफ इट। बस एक गवर्नेंस एक पार्ट है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ऑल इंडिया सर्विसेज। बट और GS4 का जो फिलोसफी वाला पार्ट है और जो फर्स्ट सेक्शन ए है, वो आपका मेजरली जो PSIR ऑप्शनल है उससे कवर हो जाता है। और कंसिडरिंग अबाउट माई दिस अटेम्प्ट, मुझे PSIR ऑप्शनल एक्सट्रीमली हेल्प करी थी to gain good marks in essay, ethics and GS2, and this is like a make or break for me to get into the list. तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप PSIR के साथ स्टार्ट कीजिए, उसे होलसम अच्छे से पढ़िए, उसके साथ साथ आप अपना GS2 ट्रैक करते रहिए कि अगर कोई टॉपिक ये छूट रहा है। एक मेजर डिफरेंस होता है, आप जब ऑप्शनल और GS2 में डिफरेंस देखते हैं तो वो ये होता है कि आप ऑप्शनल के टाइम पे स्कॉलर्स को मेंशन करते हैं और थ्योरीज़ को मेंशन करते हैं, लेकिन GS2 में आप वो सब मेंशन नहीं करते, स्कॉलर्स और थ्योरीज़। आप बस जो टेक्स्ट है बाकी वो पूरा सेम रहता है। ओके, सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट GS1. Okay, yeah, first the strategy part of it कि first 6 months was the option, then I went about with my mains completion, जिसमें कि आपके internal security और there is ethics and there is some different और जो बाकी subjects हैं जो governance और ये सब है जो prelims में नहीं पूछा जाता है लेकिन mains के लिए important है, वो सारे topics मैंने cover किए थे। उसके बाद comes your 3 months before prelims I dedicated completely to prelims. February 2022 की अगर मैं बात करूँ तो February 2022 से लेके आपके June 5 जब मेरा प्रीलिम्स था, वो पूरा एंटायर ड्यूरेशन मैंने सिर्फ डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करी है उसमें। और उसके पहले आई वॉज गोइंग अबाउट विद माई मेंस का टेस्ट एंड एवरीथिंग। आई वॉज राइटिंग ऑप्शनल के टेस्ट। देन कम्स GS1. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज फॉर GS1. GS1 में फर्स्ट विल टॉक अबाउट हिस्ट्री पोर्शन। हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री के लिए आई यूज्ड ओल्ड NCERT, और उसके बाद तमिलनाडु की बुक भी मैंने पढ़ी थी। और आर्ट एंड कल्चर वाली पोर्शन के लिए आई मेड ओन नोट्स। उसके लिए 3 सोर्सेस वर यूज्ड। एक तो जो भी मैं NCERT पढ़ रही हूँ वो, उसके बाद जो रेड बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की क्लास 11 की फाइन आर्ट्स की, उसको भी मैंने यूज़ किया था अलॉन्ग विद नितिन सिंघानिया सर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 150 पेजेस। उसमें बहुत सिंपल डायग्राम्स हैं और बहुत क्रिस्प नोट्स हैं। दैट वर एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू मी। मैंने कभी नितिन सिंघानिया वाली जो एक बहुत बड़ी सी बुक है वो नहीं पढ़ी, बिकॉज इट वॉज़ वेरी बल्की एंड आई रिलाइड मोस्टली ऑन माई नोट्स एंड द हैंड रिटन नोट्स ऑफ सर। दैट वॉज मोर हेल्पफुल। तो वो मेरे नोट्स थे आर्ट एंड कल्चर एंशियंट मेडिवल वाले पार्ट के लिए। कमिंग टू मॉडर्न, अगर कोई अभी भी स्टार्ट कर रहा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लासी टू पार्टीशन पढ़ें। वो मुझे लगता है बुक बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है और बहुत कनेक्टिंग है। ऑल्दो प्रीलिम्स के लिए अल्टीमेटली आपको स्पेक्ट्रम ही पढ़नी पड़ती है, क्योंकि उसमें जो नोट्स है बहुत रिवाइज्ड मैनर में हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स मैंने में वो बुक लिखी है। बट यू कैन अगेन गो फॉर इट। मैंने प्लासी टू पार्टीशन पढ़ी थी ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। इट इज़ अ रियली गुड बुक, तो उससे आई थिंक मेंस में बहुत हेल्पफुल रही वो बुक। उसके बाद कमिंग टू पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट। फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्दो इतना जनरली पूछा नहीं जाता है, लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन, बट नितिन सांगवान सर के 50 पेजेस के एक नोट्स हैं, 50 पेजेस के एक नोट्स हैं, वो आई डिड, yeah, and no more extra effort for post independence part. Coming to world history, I made my own notes world history में।
वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स का सोर्स आई वुड से कि आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक विजन इज़ ऑल्सो गुड. विजन का वर्ल्ड हिस्ट्री का मटेरियल यू कैन मेक योर क्रिस्प नोट्स आउट ऑफ इट. एंड सिंस आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आपको पी एस आई ऑप्शनल पहले क्यों ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि पी एस आई ऑप्शनल में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का मेजर पोर्शन ख़त्म हो जाता है. वर्ल्ड वॉर 1, 2, कोल्ड वॉर, न्यू कोल्ड वॉर, तो दैट इज़ हेल्पफुल देयर ऑल्सो. उसके बाद आई कम टू जोग्राफ़ी. जोग्राफ़ी का मेजर और आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है एन सी आर टीज़. और एन सी आर टीज़ शुड बी लिटरली रिवाइज टू द एक्सटेंट कि आपको एकदम प्रॉपरली सब कुछ याद हो. जोग्राफ़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डायग्राम मेकिंग. तो जब भी आप जोग्राफ़ी पढ़ रहे हैं तो डायग्राम्स को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, उन्हें प्रैक्टिस कीजिए. उसके साथ साथ ऋषिकेश रेड्डी सर के लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशंस के कुछ नोट्स थे दैट आई यूज्ड, क्योंकि एन सी आर टीज़ में वो इतने अच्छे से कवर्ड नहीं है वो पोर्शन. वो मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ करी थी. उनके नोट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं. आई थिंक इनसाइट्स की चैनल पे वो अवेलेबल हैं. रेस्ट इज़ GS1 का थर्ड पार्टी सोसाइटी. आई विल टेल यू कि मेरा जो न्यूज़पेपर रीडिंग था, आई यूज़ टू रीड द हिंदू. मैंने मेंस तक द हिंदू ही पढ़ा. मैम तमिलनाडु बोर्ड इज़ सफिशिएंट फॉर हिस्ट्री. एक्चुअली आई वुड से कि तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है वो सफिशिएंट. आई वुड से कि आप NCERT पढ़िए. आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक को एज अ वैल्यू एडिशन यूज़ कर सकते हैं. बट पर्सनली अगर मुझे सजेस्ट करना हो तो मैं NCERT, ओल्ड NCERT अगर आप पढ़ेंगे तो क्रोनोलॉजिकली आप चीज़ों को समझेंगे. न्यू NCERTs की जो डायग्राम्स हैं और जो कल्चर वाला पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है. न्यू NCERTs को अगर आप प्रीलिम्स वाले ड्यूरेशन में भी पढ़ते हैं, उसके जो डायग्राम्स हैं उन्हें आप एक बार अच्छे से देख लें तो वो सफिशेंट है प्रीलिम्स के लिए. बट क्रोनोलॉजिकली एक इवेंट ऑफ हिस्ट्री को समझने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप NCERT पढ़िए, ओल्ड NCERTs. ओके, यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट सोसाइटी. जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही होती थी तो मेरी एवर नोट पे 4 नोटबुक्स बनी थी. GS1, GS2, GS3 एंड GS4 एंड ऑल्सो essay. सो होता क्या था कि कोई भी इशू अगर आ रहा है आपके पास एडिटोरियल में तो वो जनरली एक लॉन्ग रनिंग इशू होता है. मैम फिजिकल जोग्राफी के लिए क्या पढ़ें? फिजिकल जोग्राफी एंड द एंटायर जोग्राफी पोर्शन के लिए मैं कम्प्लीटली रिलायबल थी NCERTs पे. तो 11-12 की NCERT आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, वो आपका मेजर सोर्स होगा. बाकी ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं जोग्राफी के लिए, एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन के लिए और इंडस्ट्रियल लोकेशंस के लिए. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग टू GS1 का सोसाइटी. हाँ, सो आई वॉज मेकिंग माई नोट्स इन एवर नोट. जो भी एडिटोरियल आई यूज़ टू रीड, मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उस एडिटोरियल में है वो उसी सिलेबस के टॉपिक के नीचे अपने एवर नोट में लिख लेती थी. उससे 2 चीज़ें होती है. एक तो आप नेक्स्ट टाइम जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वही इशू आ रहा है तो आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वो सेम रेपिटेटिव चीज़ पढ़ने में. अभी आप जब दोबारा एडिटोरियल पढ़ रहे हैं उसी इशू पे तो यू विल सर्च कि इसमें क्या नई चीज़ ऐड हो रही है, और जो भी न्यू चीज़ उसमें आपको दिख रही है वो आप अपने एवर नोट पे ऐड कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट आई यूज़ टू डू. तो इस तरीके से थ्रू आउट द ईयर करंट इश्यूज़ का मेरे पास एक मैम फिजिकल जोग्राफी के लिए क्या पढ़े हैं? आई टोल्ड यू एलिमिनेशन टेक्निक. आई विल टॉक अबाउट प्रीलिम्स इन अ फ्यू मोमेंट. तो उसके बाद हम प्रीलिम्स के लिए ये डिस्कस करते हैं कि एलिमिनेशन का क्या रूल है. PSR को करंट से कैसे लिंक करना चाहिए, डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर? सी एक्चुअली PSR इज़ अ वेरी स्कॉलरली बेस्ड सब्जेक्ट. आप उसको ऐसे करंटली बेसिस से आप नहीं ऐड कर सकते. आप जो भी एडिटोरियल पढ़ेंगे, चाहे आप ORF पे पढ़ें या फिर द हिंदू पे ही, इंडियन एक्सप्रेस पे भी देयर आर सम रियली गुड स्कॉलर्स हु राइट, वेदर इट इज़ सुहासिनी हैदर मैम और C राजा मोहन सर. तो आप उनके जो एडिटोरियल्स पढ़ेंगे उसमें आप समझ जाएंगे कि करंट इशू से कैसे लिंक करना है. अदरवाइज़ उसका करंट से इतना कुछ लेना देना नहीं है. इट्स ओनली कि आप अपडेट रहें कि क्या हो रहा है. बाकी आप जो भी आप आंसर लिखते हैं PSR में वो आप थ्योरेटिकल बेसिस पे लिखते हैं. थैंक यू सो मच. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट सोसाइटी. तो करंट इशूज़ थ्रू आउट द ईयर मैं अपने अपडेट कर रही थी एवर नोट पे, तो वो तो सोसाइटी का करंट पार्ट हो गया. नेक्स्ट इसकी सोसाइटी के एक बेसिक नोट्स आप किसी भी कोचिंग से ले लीजिए कि सोसाइटी क्या है, कल्चर क्या है, इंडिया का वैल्यू सिस्टम, फैमिली सिस्टम,
इन सब के लिए जो भी नोट्स हैं वो किसी भी आप एक कोचिंग के नोट्स यूज़ कर सकते हैं, किसी टॉपर के भी नोट्स यूज़ कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि महक जैन मैम है और मृदुल शिवरे सर हैं, आप उनके नोट्स इस सेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट इज़ ऑल योर वैल्यू एडिशन, कि आप अपने करंट अफेयर से कितना उसे अपडेट करते हैं। हिंदी मीडियम के लिए कौन सा ऑप्शन? आई एम सो सॉरी, मैंने अपना एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम से दिया और ऑप्शनल सेलेक्ट करने के आई डोंट थिंक कि मीडियम पे डिपेंड करना चाहिए। आप जब ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप सारी पढ़ाई से बोर हो गए हो तो भी आप उसे उठाओ और पढ़ो। सेकेंड इज़ कि आपके पास उसके कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसका गाइडेंस कितना अवेलेबल है। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सेलेक्ट करने में। लेट्स सी रिवीजन कैसे करें, हाउ टू लर्न विथ कॉन्सेप्ट्स। एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि रिवीजन आप ऐसे कीजिए कि आप हर 3 डेज़ में आप उसे रिवाइज़ कीजिए जो अभी तक के आपके नोट्स बने, क्योंकि 3 दिन बाद समहाउ वो आपके माइंड से स्किप होने लग जाएगा जो भी आपने पढ़ा है। अगर आपने कल कुछ नोट्स बनाए, कल कुछ टॉपिक पढ़ा, तो आज आप जब अपनी नई पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो कल का जो भी आपने पढ़ा था एक बार आप उस पर नज़र डाल के उसके हाईलाइटेड पोर्शंस को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। विच ऑप्शन विल बी बेस्ट? मैम आंसर IT में स्टैटिक एंड करंट को कैसे कंसोलिडेट करें? आई एम कमिंग टू एथिक्स, आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स इन अ मोमेंट। हाँ, सो आई विल टॉक अबाउट सोसाइटी, उसके बाद विल कम टू GS2। नाउ क्योंकि मेरा ऑप्शनल PSI रहा है तो GS2 मेरा ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वहीं से कवर हो गया था। लास्ट ईयर मेन स्पेसिफिकली के लिए सौरभ कुमार सर, जो इस वक्त राव IAS में फैकल्टी हैं, उन्होंने नोट्स कंपाइल किए थे और उनके कंपाइल नोट्स मैंने यूज़ किए थे फॉर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस एंड वो सारा वाला पोर्शन जो भी है। बाकी GS2 में बहुत इंपॉर्टेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स। गवर्नेंस वाली पार्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कीवर्ड्स जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में हैं, उसके लिए आप मृदुल शिवरे सर के नोट्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें कीवर्ड्स का एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है जो आप अगर अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे तो आपके आंसर की क्वालिटी बहुत एनहांस होगी। दिस इज़ अबाउट GS2। उसमें IR का पोर्शन जो भी है वो आप करंट से करिए, और करंट अफेयर्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि मैं क्या करती थी, एक तो न्यूज़पेपर था, उसमें जो भी एडिटोरियल्स थे आई यूज़ टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट। अगर कोई इशू बहुत लॉन्ग रनिंग है और सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपने एवर नोट पर आई यूज़ टू मेक नोट। अनदर पार्ट वाज मंथली मैगजीन्स। मैंने विजन की मंथली मैगजीन्स यूज़ करी थी एंड आई यूज्ड टू कंसिस्टेंटली रिवाइज इट। PT प्रीलिम्स के लिए मैंने PT 365 यूज़ करी थी और मेंस के लिए मेंस 365 यूज़ करी थी। तो आप किसी भी कोचिंग की जो अच्छी क्रेडिबल मैगजीन हो आप यूज़ कर सकते हैं। कमिंग टू GS3 नाउ, हिंदी मीडियम के लिए कौन? आई एम कन्फ्यूज अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट, प्लीज़ रिप्लाई। आई थिंक मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है कि ऑप्शनल ऐसा है कि मैं आपको नहीं बता सकती कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। ये आपके इंटरेस्ट पे सबसे इम्पॉर्टेंट डिपेंड करता है कि अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा है, आप उस सब्जेक्ट को देखिए कि क्या उसका ऑप्शन अवेलेबल है, और फिर उसके रिसोर्सेज कि मार्केट में उसके लिए कितना गाइडेंस और कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इन 3 चीज़ों के बेसिस पे आप अपना ऑप्शन डिसाइड कर सकते हैं। IR की बेसिक्स कैसे करें? एक्चुअली क्योंकि मेरा ऑप्शनल PSIR था तो मेरे बेसिक्स तो मेरे ऑप्शन से कवर हो गए थे, बट अगर आपका ऑप्शनल PSIR नहीं है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप किसी भी कोचिंग का IR का नोट्स खरीद लीजिए। मार्केट में भी वो इजीली अवेलेबल होते हैं। आई थिंक विजन और बाकी सारे बाजीराम किसी के तो नोट्स अवेलेबल होंगे IR के बेसिक। इनफैक्ट आप गूगल भी करेंगे तो यू विल गेट समथिंग। तो आप IR की बेसिक्स वहाँ से कवर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू GS3। GS3 में फॉर इकॉनमी आई कम्प्लीटली रिलाइड ऑन विवेक सिंह सर्स बुक और उनका टेलीग्राम चैनल। इनफैक्ट सर का जो टेलीग्राम चैनल था, मैं सारी इकॉनमी की न्यूज़ वहीं से पढ़ती थी। मैं सिर्फ न्यूज़पेपर से हेडलाइन पढ़ती थी, बाकी आई यूज़ टू नो कि हर दिन उसे अपडेट कर देते हैं। तो अपडेट होने के बाद मैं वहीं से वो पढ़ती थी उनके टेलीग्राम चैनल से सारी इकॉनमी की न्यूज़। मैंने मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही सर की नोट्स पे मैं कम्प्लीटली रिलाई रही हूँ उनकी बुक पे। तो दैट वाज माय सोर्स फॉर इकॉनमी।
नाउ कमिंग टू एनवायरनमेंट. फॉर एनवायरनमेंट मैंने अपने नोट्स बनाए थे फ्रॉम शंकर आईएएस एंड बेसिक्स आई टोल्ड. क्वालिटी में नंबर कैसे एनहांस करें, आई टॉक अबाउट इट इन अ मोमेंट. हाँ, फॉर एनवायरनमेंट आई यूज़ शंकर आईएएस की जो बुकलेट है वो, और कुछ मार्केट में कुछ कोचिंग के अगर नोट्स अवेलेबल हो तो आप उनसे ये चीज़ें देख सकते हैं. रोमन सैनी सर का बहुत पुराने कुछ वीडियोज़ हैं अनअकैडमी पे जो प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल थे. वो मैंने कुछ वीडियोज़ देखी थी, दैट हेल्प. बाकी अगेन एनवायरनमेंट इज़ वेरी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, तो उसके लिए जो रोज़ एडिटोरियल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, और डाउन टू अर्थ के जो यूट्यूब चैनल है और डाउन टू अर्थ जो मैगज़ीन का जो लिंक जो एडिटोरियल्स आते थे उनसे मैं अपना जो नोट्स है वो अपडेट करती थी. दैट इज़ अबाउट एनवायरनमेंट. नाउ कमिंग टू साइंस एंड टेक. फॉर साइंस एंड टेक आई रिलाइड ऑन करंट अफेयर मैगज़ीन. लेकिन करंट अफेयर मैगज़ीन में अगर किसी चीज़ के बेसिक्स मुझे नहीं पता थे तो मैं उसे गूगल कर लेती थी, यूट्यूब पे कोई उसका वीडियो देख लेती थी, ताकि वो चीज़ जो है उसका कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में क्लियर हो जाए. तो दैट इज़ हाउ आई कवर्ड साइंस एंड टेक, बट इट वॉज मेजरली करंट अफेयर्स बेस्ड. साइंस एंड टेक फ्रॉम बेसिक. सिर्फ अगेन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं हैं खुद से, तो आप उस मार्केट में जाके किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं या किसी टॉपर के नोट्स भी ले सकते हैं. फॉर मेंस अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो मेंस 365 से मैंने साइंस एंड टेक कवर किया था, और जो मेरे एडिटोरियल्स थ्रू आउट द रन दैट आई वाज मेकिंग नोट्स वो आई कंपाइल्ड. नाउ कमिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी. For internal security I made my own notes from toppers notes से कुछ, और अगेन आप मृदुल शिवरे सर के नोट्स यूज़ कर सकते हैं. आप यू कैन यूज शुभम कुमार सर्स नोट्स ऑल्सो. 9th NCERT and 10th NCERT is sufficient for science basics. एक्चुअली नॉट जस्ट 9th and 10th, क्योंकि 11th की बायोलॉजी का भी कुछ पोर्शन है उसमें साइंस एंड टेक में. आई वुड सजेस्ट कि आप किसी कोचिंग के नोट्स परचेज कर लीजिए या किसी टॉपर के नोट्स अगर साइंस एंड टेक में अवेलेबल है तो यू कैन टेक दैट. नाउ कमिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी, एज आई टोल्ड दैट आई हैड मेड माई ओन नोट्स फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल. साइंस एंड टेक में डिस्कस एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है अगेन आई कवर्ड इट फ्रॉम विवेक सिंह सर की जो बुक है इकॉनमी की, उसी से कवर किया था. बाकी जो भी न्यू बिल्स या फिर कुछ भी एडवांसमेंट्स या कुछ भी अपडेट्स उसमें होती तो वो एडिटोरियल से ऐड किया था. डू यू हैव अ टेलीग्राम चैनल? नो, आई डोंट हैव. मैम, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट? सी एज आई टोल्ड यू कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वाई यू वांट टू डू दिस एग्ज़ाम. अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि वाई आई वांट टू डू दिस एग्ज़ाम तो यू विल स्टे कंसिस्टेंट. इफ़ एट ऑल आपको लग रहा है कि आप किसी पुश की वजह से या किसी चाम की वजह से इस एग्ज़ाम साइकिल में आ गए हो तो कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही कंज्यूमिंग प्रिपरेशन होती है. बट ऑल्सो अगर कोई और रीज़न है कंसिस्टेंसी नहीं रह पाने का तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रॉपर ब्रेक्स लीजिए पढ़ाई के बीच में. अपने आप को इतना ज़्यादा आइसोलेट मत कीजिए कि आपको अपनी पढ़ाई बहुत बोरिंग और बहुत हॉन्टिंग लगे. तो मीट योर फ्रेंड्स एंड बी इन टच विद योर फैमिली एंड योर क्लोज वंस. टेक ब्रेक्स, मे बी once in a weekend and twice in. How many hours you study during preparation? See, I would suggest कि rather than following कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ, आई फोकस कि आज के दिन के लिए जो भी मेरे टारगेट्स हैं वो मीट हो रहे हैं या नहीं. तो आई यूज़ टू सेट माई टारगेट्स कि अगर मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ में GS2 कंप्लीट करना है तो उसके लिए मुझे कितने टॉपिक्स पर डे कंप्लीट करने पड़ेंगे, और पर डे के हिसाब से वो टॉपिक्स आई यूज़ टू सी एंड आई यूज़ टू फोकस कि आज का जो टारगेट है वो मीट हो जाए. अब उसके लिए 8 आवर्स लगे, 6 आवर्स लगे या 10 आवर्स लगे. हाउ टू, बट या इट्स नॉट लाइक कि आप हर दिन 100% टारगेट्स मीट करते हैं. दैट इज़ अगेन आई वुड से अ मिथ. तो एटलीस्ट 80% टारगेट्स आपके हर रोज़ मीट होने चाहिए. How many hours to study? How to analyze PYQs or syllabus? Many problem faces.
एनालाइज, यू सी यू कैन यूज़ मृणाल सर्स वेबसाइट, उसमें उन्होंने टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज PYQs एनालाइज किए हैं, तो आप कम्प्लीटली उस पर रिलाई हो सकते हैं. दैट इज़ अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट. मैम, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड टू डेली रीडिंग. एज आई टोल्ड यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न. आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्यों क्लियर करना चाहते हैं. अगर वो रीज़न है तो आप मोटिवेटेड रहेंगे. सी, मोटिवेटेड कैसे रहें, इससे इम्पॉर्टेंट है कि आप डीमोटिवेट हो किस चीज़ से रहें. तो वंस यू टेल मी कि आप क्यों डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो मे बी आई कैन टेल यू अ बेटर वे फॉरवर्ड. ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट GS3. I hope I'm done with the major sources for GS3. Apart from it, as I told you कि कुछ editorials, which YouTube channel is good for newspaper reading. मैंने अपना newspaper reading खुद से I used to do. मैंने किसी YouTube channel को follow नहीं किया था, बट आई हैव हर्ड कि राउस का DNS इज़ रियली गुड. और मैंने एक दो बार उसे मेंस के टाइम पे देखा था जब मेरा न्यूज़पेपर छूट जाता था कभी. मैम, इन UPSC में व्हाट स्ट्रगल यू अचीव. You don't achieve struggles. Okay. Internal security or science and tech, environment, economy is done. Agriculture is done. What's your schedule including reading newspaper? मेरा schedule ऐसे रहता था कि I used to wake up early in the morning 4 or 5 o'clock. I used to wake up और मैं अपने दिन की स्टार्ट करती थी करंट अफेयर्स से. तो जो भी करंट अफेयर्स मैगजीन में पढ़ती थी, I used to read विजन मंथली मैगजीन, तो मैं उससे स्टार्ट करती थी. उसके बाद आई हैड माई डे प्लान कि मुझे क्या क्या टॉपिक्स आज कौन कौन से सब्जेक्ट से कवर करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आई यूज़ टू गो. मैम, योर करंट अफेयर स्ट्रेटजी. आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मैं करंट अफेयर्स के लिए मेंस तक द हिंदू पढ़ती थी. उसके एडिटोरियल्स के अगर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ चल रहे हैं जो सिलेबस से बहुत रेलिवेंट है, तो मैं अपने एवरी नोट में उसके पॉइंट वाइज नोट्स बना लेती थी इन डिफरेंट नोटबुक्स. उसके बाद मेंस तक द हिंदू था, और प्रीलिम्स के लिए आई यूज़ PT 365, मेंस के लिए आई यूज़ मेंस 365. और सौरभ सर ने लास्ट ईयर कुछ नोट्स कंपाइल किए थे फॉर गवर्नेंस पॉलिटी, वो सब भी आई यूज्ड. एंड मंथली मैगजीन ऑफ विजन. हाउ टू एनर्जाइज वन सेल्फ. आई फील स्लीपी वाइल रीडिंग. हाउ टू एनर्जाइज वन सेल्फ. Why do you feel sleepy? I mean, is it a boring subject you pick up once? I think आप इनिशियल पार्ट ऑफ द डे में वो सब्जेक्ट उठाइए जो कि आपको थोड़ा सा इतना पसंद ना हो, ताकि जो सेकेंड हाफ ऑफ द डे है उसमें आप अपना इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट उठाएं, सो दैट यू कैन एक्सटेंड योर स्टडी आवर्स. मैम, हाउ टू लेस स्लीप व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएस. हाउ कम यू आर स्लीपिंग व्हेन यू आर ड्रीमिंग ऑफ सच बिगर थिंग्स इन लाइफ. सी, आई थिंक स्लीप इज़ अगेन आपकी हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप सोचिए कि आपका फूड हैबिट्स क्या है, आपकी रेस्ट आप कितनी देर कर रहे हैं, आप फिज़िकली कितना एक्टिव हैं. आप स्ट्रेच कीजिए जब आप पढ़ रहे हैं कुछ देर तक, तो वॉक करके पढ़िए. एनी लिटरेचर सब्जेक्ट ऑप्शनल यूपीएससी इज गुड. आई एम सॉरी, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है. मैम, मेरा बेस PSIR में नहीं है. अब मैम, मैं कोचिंग लूँगी, प्लीज़ आप PSIR की स्ट्रेटजी बताइए कि PSIR को किस तरह. मैंने PSIR की स्ट्रेटजी ऑलरेडी इनिशियली बता दी है. मैंने शुभ्रा रंजन मैम के पोस्टल करस्पॉन्डेंस वाले नोट्स दिए थे, और उसके थ्रू गूगल डॉक्यूमेंट्स में मैम बहुत सारी रीडिंग्स भेजती हैं जो मैंने पढ़ी थी, और मेरा और कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं था. मैंने मृदुल शिवरी सर के नोट्स यूज़ करे थे ड्यूरिंग मेन्स फॉर वैल्यू एडिशन. व्हाट इज़ द ऑप्शन PSIR. हाउ यू मेक डेली टाइम टेबल. आप बैकवर्ड्स चलिए. अगर आपको टाइम टेबल बनाने में कोई इशू आ रहा है तो फॉर एग्जांपल आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट देना है, तो नेक्स्ट जो भी प्रीलिम्स है उसके 3 to 4 मंथ्स पहले आप कम्प्लीटली प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करेंगे. उसके कुछ मंथ्स पहले आप कम्प्लीटली मेंस ओरिएंटेड अपनी स्टडीज़ रखें, मेंस प्लस प्री ओरिएंटेड. तो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट 6 मंथ्स में आप अपना ऑप्शनल तो एटलीस्ट कवर कर लीजिए. ओके, वेट. हाउ यू मेक योर डेली टाइम टेबल. PSR का करंट अफेयर के सोर्स. करंट अफेयर के सोर्स एडिटोरियल्स ही हैं, या फिर ORF में आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं.
वैसे जब आप मेंस की टेस्ट सीरीज़ लेंगी PSR के लिए तो क्रैश कोर्स में भी आपके जो करंट अफेयर्स से अपडेट हो जाएंगे. हाउ टू कोप अप विद मेंटल ब्रेकडाउन्स. मैम ऐसे एंड एथिक्स के लिए कोड कैसे लिखें? ओके, आई एम कमिंग टू दैट. आई एम कमिंग टू GS4 नाउ. फॉर GS4 माई सोर्स वॉज लुकमान आइस की जो नोट्स थे उनके शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे. और एज आई टोल्ड यू कि थ्रू आउट द ईयर मैं एडिटोरियल्स की नोट्स बना रही थी. कोई भी अच्छा एग्जाम्पल होता था न्यूज़ में, कोई भी IAS ऑफिसर है जिन्होंने कोई एक्सेप्शनल वर्क किया लिमिटेड रिसोर्सेज में, उनकी एग्जाम्पल. और द बेटर इंडिया करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स और पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, उनकी स्ट्रगल स्टोरीज़ और उनके कुछ अच्छे एफर्ट्स जिनकी वजह से कुछ इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट हुआ है वो आता है. तो आई यूज़ टू कंसिस्टेंटली वॉच इट एंड रीड अबाउट इट. सौरभ सर के कंपाइल नोट्स मैंने एथिक्स के लिए यूज़ किए थे वैल्यू एडिशन के लिए. GS4 की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है GS4 का सेक्शन ए. अगर सेक्शन ए आपने बहुत अच्छे से कवर किया है तो फॉर केस स्टडीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है. तो सेक्शन ए के लिए आई वुड से कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि टू नॉट फॉलो द ट्रेंड. आप ऐसे मत सोचिए कि क्वेश्चन मुझे इसका आंसर देना है और जो भी एग्जैक्ट आंसर होता है मैं वही. देयर इज़ नो एग्जैक्ट आंसर इन एथिक्स. आप अपना पर्सपेक्टिव उस आंसर में डालने की कोशिश कीजिए. आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए सिलेबस के हर एक टॉपिक की, हर एक कीवर्ड की, इंटेग्रिटी, प्रोबिटी, हर एक चीज़ की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए. उसका एक एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रहना चाहिए. 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच टॉपिक. और सेक्शन ए में यू कैन यूज़ योर राइटिंग स्किल्स वेरी वेल. ओके, दिस वॉज फॉर एथिक्स. सो बेसिक सोर्स फॉर एथिक्स वॉज लुकमान आइस के नोट्स इन माई केस. इंटरव्यू में आई कम टू इंटरव्यू इन अ बिट. जस्ट अ मिनट. I think I have told you about GS 1, 2, 3, 4 and my option. Now I'll talk about essay. ऐसे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स डेवलप कीजिए. वो ऐसे होगा कि आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप टॉपर्स के एसेस पढ़िए. जो भी लास्ट ईयर ऐसे टॉपर्स रहे हैं, मैंने विक्रम गरेवाल सर और महक जैन मैम, दीक्षा जोशी मैम, इन सब के एसेस बहुत अच्छे से पढ़े थे. तो आपको रियलाइज़ होगा कि जब आप इनके एसेस पढ़ते हैं तो एक फ़्लो है, एक कनेक्ट है. आप यू फील लाइक कि आपको आगे पढ़ना चाहिए. वो आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले आपका GS कवर्ड हो. क्योंकि अगर आपको इश्यूज़ नहीं पता, सोसाइटी की चैलेंजेस नहीं पता, तो आप फिर ऐसे लिख नहीं सकते अच्छा. तो आपका GS अच्छे से कवर्ड होना चाहिए ऐसे के लिए. रेस्ट इसके आपने आज तक कुछ भी लाइफ में पढ़ा हो, कोई स्टोरी सुनी हो, कोई एनेक्डोट सुना हो, वो सब आपके हेल्प में आएगा ड्यूरिंग ऐसे. तो आप कोट्स का और एनेक्डोट्स का एक फ़ाइल मेंटेन कर सकते हैं फॉर ऐसे. आप जब अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं तो यू स्टार्ट विद एन एनेक्डोट, अ कोट, और मे बी जस्ट एक्सप्लेनिंग दी टॉपिक अगर बहुत फिलोसफिकल ऐसे आया है तो. देन यू गो अबाउट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दी ऐसे. ऐसे में जनरली क्या होता है, जो भी टॉपिक देते हैं जनरली एस्पिरेंट्स उसको एक ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं कि जिस डायरेक्शन में वो पूछा है बस वही. आपको ऐसे के टॉपिक की, अगर आप एनेक्डोट से स्टार्ट कर रहे हैं अपना ऐसे, तो ट्राई कि आप उस एनेक्डोट से लिंक करके उसको कंक्लूड करें. बट सिंस आई एम टेलिंग यू जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद ऐसे, आई वुड से कि ऐसे में आपकी क्रिएटिविटी, आपकी राइटिंग स्किल्स का बहुत स्कोप है. मैम ऐसे एंड एथिक्स के लिए कोड कैसे लिखे? देयर आर न्यूमरस कोड्स जो आपको ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएंगे. और बाकी आप अनुदीप दुरुशेट्टी सर के, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, उनके पास एक कोड्स का, उनकी वेबसाइट पे, उनके ब्लॉग पे कोड्स का एक पूरा PDF है. मोस्ट ऑफ टॉपर्स यूज इट, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं. हाउ मैनी आवर्स यू डिवोट फॉर स्टडी ड्यूरिंग UPSC प्रिपरेशन? एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स, इट्स अबाउट, अगर कभी कभी मेरे डेली टारगेट 6 to 8 आवर्स में कंप्लीट हो जाते थे तो उतना टाइम, और कभी 10 आवर्स में नहीं होते थे तो 10 आवर्स भी लग जाते थे. तो टाइम इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है. हाउ टू इवैल्यूएट आंसर फॉर मेंस राइटिंग प्रैक्टिस?
अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म जैसे कि इनसाइट्स आईएस बाबा पे अपने आंसर्स अपलोड कर सकते हैं पीयर रिव्यू के लिए। अदरवाइज़ अगर कोई टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, अदरवाइज़ तो फिर आप टेस्ट सीरीज लेंगे और आपकी कॉपीज़ इवेल्युएट होंगी। व्हाट्सअप लव, थैंक यू, लव यू टू सुष्मिता। ओके सुश। RS Agrawal, quant and reasoning is good for UPSC, ma'am. What to consider? Okay, I'm coming to this part now. I think I'm done with the basic GS 1, 2, 3, 4 and essay and ethics. Now coming to prelims, extremely important. I would suggest कि जो भी न्यू एस्पिरेंट्स जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, एटलीस्ट 4 months 3 to 4 months आप डेडिकेटेडली प्रीलिम्स को दीजिए। और उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिविज़न। आपके जो बेसिक नोट्स हैं, जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, आप उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कीजिए। सेक्शनल टेस्ट दीजिए हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप रिवीजन इतना इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट देने के बाद आपको पता चलता है कि जो आप बेसिक सोर्स पढ़ रहे हैं उसमें भी कौन सी चीज़ें हैं जो आप कंसिस्टेंटली इग्नोर कर रहे थे। देन आई वुड सजेस्ट कि कम से कम 40 to 50 टेस्ट जनरली पीपल गिव, फुल लेंथ टेस्ट वो दीजिए। एक और चीज़ जो आई वुड से कि सिंस यूपीएससी कीप चेंजिंग इट्स पैटर्न इन प्री, तो किसी एक ही पर्टिकुलर कोचिंग के अगर आप टेस्ट देखेंगे तो एक पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, उस पैटर्न से बचिए। तो अलग अलग कोचिंग के आप टेस्ट यूज़ कीजिए फुल एंड टेस्ट प्रीलिम्स के लिए, सो दैट कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है और कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं है जो आपके दिमाग से मिस हो रही है। प्रीलिम्स पेपर इज़ फिल्ड विद रैंडम क्वेश्चंस नाउ, तो आपको रैंडम चीज़ें पढ़ने के लिए जब आप 2 months बिफोर द प्रीलिम्स आप कोई भी क्वेश्चन अगर फुल एंड टेस्ट में करते हैं तो आप उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा सर्च कीजिए गूगल पे, कोई भी वेबसाइट पे। नॉट नेसेसरीली कि आप उसे यूपीएससी टाइप करके सर्च करें, आप इन जनरल उसे सर्च कीजिए। और रैंडम टेक्स्ट अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको रैंडम नॉलेज की आदत हो जाएगी। यू विल नो कि कुछ अलग नहीं है एग्ज़ाम में, यू वेरी यूज टू रीडिंग रैंडम स्टफ, तो एक जो फियर ऑफ रैंडमनेस है वो चला जाएगा प्रीलिम्स से। कमिंग टू सी सेट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस ईयर इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट एंड आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा सी सेट को। आई वुड से कि 4 months बिफोर द एक्चुअल प्रीलिम्स एग्ज़ाम आप सी सेट को हर दिन डेडिकेटेडली 2 to 3 hours डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू नीड टू प्रिपेयर फॉर सी सेट, आप उसे टाइम डिवोट कीजिए। और सी सेट के लिए आई वुड से कि सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की। आप किसी और आंसर की पे रिलाई मत कीजिएगा फॉर सी सेट, क्योंकि इतना ज़्यादा वेरिएशंस है बिटवीन डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कीज़ कि यू विल जस्ट फॉल इन दैट ट्रैप। तो आप ऑफिशियल आंसर की जो यूपीएससी की है उसे यूज़ कीजिए। और कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी कॉम्प्रीहेंशन हो, आप उसे पढ़िए, आप उसका आंसर खुद डिसाइफर कीजिए। और अगर वो आंसर आपको लगता है कि गलत हुआ है यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से, तो फिर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये गलत क्यों हुआ है, और अगर आंसर ये है तो ये कैसे है। तो आपको उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसे एक कॉम्प्रीहेंशन के साथ, उससे एक पेपर के साथ, सो दैट यू गेट अ नैक ऑफ इट कि एक्चुअली एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, किस तरीके का स्टैंडर्ड यूपीएससी रखती है व्हाइल आस्किंग सी सेट क्वेश्चंस। मैथ्स इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो आई वुड नॉट इवन से बेसिक मैथ्स, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस थे वो तो अबव बेसिक थे, तो प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस। कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सिलेबस के पॉइंट्स हैं जिनसे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है, तो वो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। इनफैक्ट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हर साल एक दो होते थे, इस साल आई थिंक वो ज़्यादा हैं, बट वो कंसिस्टेंटली पूछ रही है, तो इट्स बेटर कि यू प्रिपेयर इट। हाउ आई प्रिपेयर्ड सी सेट वॉज कि सी अप टिल माई 12th standard आई हैड मैथ्स बैकग्राउंड, तो आई वुडंट से आई वॉज टू कम्फर्टेबल इन मैथ्स, बट इतना नूब भी नहीं थी मैं मैथ्स में। तो कॉम्प्रिहेंशन वॉज माई स्ट्रॉन्ग एरिया, तो आई हैड डिसाइडेड कि मुझे कितने टाइम में क्या क्या करना है उस सी सेट के पेपर में। तो आई यूज़ टू इनिशियली स्टार्ट विद कॉम्प्रीहेंशंस। आई डिडंट डू ऑल द कॉम्प्रीहेंशंस, कुछ कॉम्प्रीहेंशन जो साइंस इंटेक बेस्ड होते थे या बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पे बेस्ड होते थे, वो आई यूज़ टू इग्नोर, वो मैं लास्ट में जाकर दोबारा देखती थी। उसके बाद सेकेंड पोर्शन वॉज रीजनिंग, क्योंकि उसमें मैं कंफर्टेबल थी। देन कम्स योर क्वांट वाला पार्ट, मैं भी उसमें एक्चुअली आई यूज़ टू मिनिमाइज़ माई अटेम्प्ट इन दैट, कुछ भी उसमें रैंडम गेस नहीं कर सकते।
तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि इसमें कम से कम अटैम्प्ट करूँ, और जो शॉर्ट मुझे पता है कि ये हो सकता है आंसर, उसी को आई यूज़ टू मार्क इन क्वांट। देन कम्स कि जो लास्ट कुछ 20 मिनट्स आई यूज़ टू कीप कि एक और बार आई जस्ट सी थ्रू द स्किम थ्रू द पेपर एंड सी कि कुछ ऐसा क्वेश्चन या कोई भी एक एक्स्ट्रा पैसेज या कुछ भी मैं अटैम्प्ट कर सकती हूँ इस वक्त। आई एम सॉरी, मैंने एक सी सेट के लिए कोई बुक नहीं यूज़ करी। येस, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज़ अ चैनल कॉल्ड सी सेट मंत्रा इन यूट्यूब एंड इन टेलीग्राम। मैंने वो चैनल बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन है सी सेट के वो आते हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स सर यूट्यूब पे वीडियो पे अपने अपलोड कर देते हैं। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता है तो सर एक्सप्लेन्स इट वेरी वेल। तो सी सेट मंत्रा इज़ द नेम ऑफ द चैनल। वो मैं कम्प्लीटली आई वॉज रिलाइड ऑन इट फॉर रीजनिंग एंड क्वांट पार्ट। मैम टेल अस हाउ टू refer in first attempt by clear prelims and CSET मंत्रा इज़ द चैनल फॉर CSET जो मैंने यूज़ किया था। अदरवाइज़ प्रीवियस क्वेश्चंस एटलीस्ट 2019 से जो CSET का पेपर है, आप डेफिनेटली 2019 टू 2023 तक के सारे पेपर्स सॉल्व कीजिए। आंसर राइटिंग कैसे करें मैम? आंसर राइटिंग के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है PYQs। आप PYQs सॉल्व कीजिए। आप कोई भी सिलेबस पढ़ते हैं, कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं, उसके PYQs देखिए, उसके आंसर लिखिए। और आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको PYQs की सॉल्व आंसर्स मिल जाते हैं, आप अपना आंसर कंपेयर कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव कॉम्प्रीहेंशन पार्ट? कॉम्प्रीहेंशन पार्ट इन लॉन्ग टर्म आई वुड से कि अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट आपकी है तो वो इम्प्रूव होगी। बाकी आपको बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे CSET के, ताकि जो टाइम है आपका पैसेज पढ़ने में और उसको सॉल्व करने में रिड्यूस हो सके। आपकी रैंक क्या है? मेरी रैंक है 102। हाउ टू इम्प्रूव आंसर राइटिंग स्किल्स? सी आंसर राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है और आपने अपना नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज़ किए हैं तो आंसर राइटिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आप प्रॉपर लिख भी पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास कोई टॉपिक है जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप कि आप उसको फ्लो चार्ट फॉर्मेट में कैसे समझा सकते हैं, आप इसमें कौन सा डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर आंसर राइटिंग द मेजर पार्ट इज़ कि आप पहले कंटेंट डेवलप कीजिए। और दूसरी चीज़ आंसर राइटिंग के लिए है कि आप क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हाउ टू प्रिपेयर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी? सी यू कैन जस्ट गूगल नैनो टेक्नोलॉजी UPSC, आपको कुछ ना कुछ राइटअप कुछ मिल जाएगा, या आप किसी कोचिंग के नोट्स यूज़ कर सकते हैं। मैम आई ऑलवेज फाइंड टाइम वेरी लिमिटेड इन CSET एग्जाम, हाउ मेनी क्वेश्चंस टू बेटर? यू आर राइट एक्चुअली, क्योंकि वो टाइमिंग होता भी ऐसा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ समर्स। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है वो। एक तो आपने GS का पेपर दिया होता है, उसके बाद लंच टाइम के बाद द CSET पेपर कम्स, इट्स एक्सटॉर्टिंग हीट आउट देयर। तो वो टाइम इज़ डिफ़िकल्ट, उसमें टाइम मैनेज करना इज़ डिफ़िकल्ट। बट टाइम मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसके टेस्ट सिमुलेट करें, उसी टाइमिंग में सिमुलेट करें। अगर आपको प्रीलिम्स देना है 27 मई को, तो मंथ बिफोर दैट आप उसी टाइम पे अपनी CSET के पेपर्स दीजिए, जो 2:30 to 5:30 वाला टाइम है। हाउ मैनी क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इन CSET? आई थिंक इट वेरीज कि आप कितना श्योरिटी के साथ क्वेश्चंस को मार्क कर रहे हो, बट आई वुड से सजेस्ट कि 50 to 55 क्वेश्चंस यू शुड। मैंने एटलीस्ट 53 क्वेश्चंस। गुड आफ्टरनून मैम, माई इंग्लिश लैंग्वेज देर आर सो मैनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, हाउ टू इम्प्रूव दिस प्रॉब्लम? अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। बाकी स्पेलिंग मिस्टेक्स तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि आप जब आप पढ़ रहे हैं कोई भी टेक्स्ट तो बहुत अवेयरनेस के साथ उसे पढ़िए। कोई बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक ऐसा कोई टर्म है जो स्पेसिफिक टर्म या कीवर्ड है उसको आप बार बार लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं।
मैम मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, क्या हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन ले सकते हैं क्या इन इंग्लिश मीडियम? अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप हिंदी मीडियम से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन ले सकते हैं। अब आई थिंक उसके रिसोर्सेज भी मार्केट में हिंदी के अवेलेबल है। द हिंदू भी अब जो है हिंदी में प्रकाशित होता है, तो आप द हिंदू का हिंदी जो वर्जन है वो भी पढ़ सकते हैं। बट आई वुडेंट से कि अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको इंग्लिश स्विच करनी चाहिए, क्योंकि सी इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ को, और जिस लैंग्वेज में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप सबसे अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप वो करें। मैम स्टेट पीसेस लाइक RS CPC बोथ आर मैनेज बिटवीन देम, इट कैन बी पॉसिबल और नॉट? आई एम सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं हूँ अंकित सक्सेना। पॉसिबल बोथ स्टेट पीसेस, अच्छा। आई थिंक काफ़ी लोग प्रिपेयर करते हैं साइमल्टेनियसली, क्योंकि अगर सिलेबस सॉर्ट ऑफ सिमिलर है तो आप कर सकते हैं। बट सिंस मैंने आई डू नॉट हैव एन आइडिया अबाउट स्टेट सर्विसेज, मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया, तो आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू ऑन इट। मैम माई फर्स्ट UPSC attempt is 2025, but my optional subject is political science and international relations. It is good or not? I have already told you कि optional subject select करने के लिए you have 3 criteria, आपका interest, guidance and resources available। तो आप उस बेसिस पे डिसाइड कीजिए कि आप इसमें कंफर्टेबल हैं या नहीं है। Now coming to my interview part, I have discussed about prelims. I'll discuss a bit about mains now. सी जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद आई वुड से कि फ़र्स्ट 15 डेज़ आपको ऐसे और एथिक्स और ऑप्शनल के लिए देने चाहिए। ये 3 पेपर है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा और या फिर नहीं होगा, तो यू कैन नॉट इग्नोर देम, क्योंकि GS आप कंसिस्टेंटली प्रीलिम्स तक वैसे भी पढ़ रहे होते हैं, तो आपको एक ब्रेक भी चाहिए होता है और ये सब्जेक्ट्स थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं। तो फर्स्ट 15 डेज़ यू कवर देम, उसके बाद यू कम टू योर GS। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप है, इस गैप को बहुत ही ज़्यादा वाइजली आपको यूज़ करना पड़ता है। देयर इज़ नो टाइम फॉर एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट स्टडिंग हियर, और यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट। मेंस के टेस्ट लिखने होते हैं, अपना आंसर्स इंप्रूव करना होता है, टॉपर्स कॉपीज़ आपको देखनी पड़ेंगी कि दोज हु आर स्कोरिंग बेटर मार्क्स क्यों स्कोर कर रहे हैं। अनदर पार्ट इज़ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए हर टॉपिक हर सब्जेक्ट के लिए इसमें रीडिंग मीन्स, क्योंकि आपको बहुत सारे क्रिस्प नोट्स बना के बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू मैम माई फर्स्ट UPSC, ओके आई हैव डन इट। व्हाट स्टडी मटेरियल प्रेफर फॉर सेल्फ स्टडी? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड माई रिसोर्सेज। आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बट सडनली आई चेंज माई लैंग्वेज इन इंग्लिश मीडियम, बट आई कांट इम्प्रूव। आपको सी आई वुड से कि अगर आपने लैंग्वेज चेंज करी है, तो अगर इतना इम्पॉसिबल है अभी लैंग्वेज पे कमांड हासिल कर पाना, तो आप अपनी जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसी में एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू, आई एम विशिंग यू अ वेरी गुड लक फॉर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच अंकित। मैम UPSC प्लीज गोइंग टू बी टफ डे बाय डे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट? यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट बाय गिविंग लॉट्स एंड लॉट ऑफ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपको स्टार्टिंग से पता रहे कंपटीशन का। अपने रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज कीजिए, और जो एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं जो बस ऐसी चल रही हैं उन पर रिलाई मत कीजिए। सेकेंडली साइकोलॉजी, आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होके चाहिए कि पेपर टफ आएगा, इट विल बी वेरी रैंडम, बट यू हैव टू यूज़ योर इंटेलिजेंट गेसिंग। Now UPSC please going to tough. Which resource is sufficient for economics? Vivek Singh sir की जो book है, I used it and it was more than sufficient for me. How many marks or rank is preferred in IAS officer? I'm sorry, I'm not able to understand your marks or rank. See, I think the service allotment will come and you will know it. Okay, now I'll discuss quickly about the interview preparation. After my mains, I waited till the results were out for mains, but till that time I was reading the newspapers and also sort of preparing my DAF. तो इस टाइम पे आपको क्या करना है कि
इंटरव्यू प्रिपरेशन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन। आप इसमें बहुत ज़्यादा अपनी एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हो, अपना बैकग्राउंड, अपना होम टाउन, अपनी हॉबीज़, अपने अचीवमेंट्स। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। व्हाट हैपन्स इन दिस इज़ कि आप अपना डैफ जो है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट इज़ कि आप करंट इश्यूज़ के साथ इन टच रहिए बहुत अच्छे से। इस वक्त ऐसा होता है कि मेंस में आपको दो पर्सपेक्टिव्स दिखाने होते हैं अपने आंसर्स में, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड वे फॉरवर्ड। आप उसमें अलग अलग रिपोर्ट साइड करते हैं, रिकमेंडेशन साइड करते हैं। है यू हैव टू बैक योर ओन आर्ग्यूमेंट। इंटरव्यू में आपको अपना ओपिनियन देना होता है। उसके लिए आई रेड न्यूज़पेपर्स, आई रेड द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड मैनी मोर एक्चुअली, मिंट। मतलब आई यूज टू बी रीडिंग डिफरेंट न्यूज़पेपर्स फॉर मेकिंग a balanced opinion. Then is communication skills. Many people try the mirror one कि आप मिरर के सामने to just raise the confidence आप प्रिपेयर करते हैं. That is one. तो प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू वॉज बेसिकली डेफ, करंट अफेयर्स और बाकी जो भी आपके अभी तक की नोट्स हैं वो ही आप पढ़ते हैं. आई डिड इट. देन कमिंग टू अनदर पार्ट, मॉक इंटरव्यूज़. मॉक इंटरव्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको सबसे पहले तो सिमुलेट करना होता है कि अगर आपके सामने 5 से 6 पैनलिस्ट बैठे हैं तो आप उनके सामने कॉन्फिडेंटली आंसर्स कैसे देंगे. उसके लिए मॉक इंटरव्यूज़ थे. अबाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अगर मैंने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने अपने प्रीलिम्स के पहले ऑप्शनल की आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी टू कीप मी इन ट्रैक एंड डिसिप्लिन. तो दैट आई डिड. बाकी मेंस के लिए आई यूज टू राइट आंसर्स. इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था मैंने बहुत सारे आंसर्स लिखे थे और द आंसर्स वर बेसिकली IAS बाबा और इनसाइड के प्लेटफॉर्म पे जो डेली होते हैं, दैट आई यूज टू डू पीयर रिव्यू के लिए. एंड PYQs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मैनी मार्क्स. ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या सोर्स है. आई टोल्ड यू कि मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री जो है शॉर्ट नोट्स बनाए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट विजन के. आप नोट्स खरीद सकते हैं, मैंने वही यूज़ किए थे वर्ल्ड हिस्ट्री के, और आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं. बाकी टॉपर्स नोट्स भी अवेलेबल हैं. हाउ डू यू डू ड्यूरिंग, वी हार्डली गेट 3 hours आफ्टर एग्जाम पेपर 1 2 फॉर नेक्स्ट पेपर 3 4. एक्चुअली यू विल डू इट क्योंकि आप कंसिस्टेंटली मेंस के पहले टेस्ट लिखते हैं तो यू विल गेट इन द नेक ऑफ इट. हाउ डू रिवाइज. ओके, मैंने रिविज़न का ऑलरेडी बताया कि हर थर्ड डे आप अपना जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो रिवाइज़ कीजिए और वीकेंड पे अगेन आप उसे रिवाइज़ कीजिए. व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग 2 hour टाइम बिटवीन पेपर 1 and 2. पेपर 1 and 2 के बीच में आई यूज़ टू हैव मील और फ्रेशन अप. आई यूज़ टू ऑल्सो लिसन टू म्यूज़िक समटाइम्स फॉर लाइक 10 to 15 minutes. अदरवाइज़ मैं अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करती थी. थैंक यू मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम. मैं आपकी चलिए थैंक यू. I'm not participating in any school events like debate, speech, any new certificates. Actually आपको वो अचीवमेंट सेक्शन के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन एक्चुअली इंटरव्यू से ये सारी चीज़ें दीज डू नॉट मैटर इन इंटरव्यू. आप 20 मिनट्स में आप कैसे आंसर करते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन कि आपके कितने अचीवमेंट्स हैं या आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है. न्यूज़पेपर बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग विच आर्टिकल इज़ नीडेड फॉर UPSC एग्ज़ाम. तो आप सिलेबस लीजिए और सिलेबस से उसे देखिए. और अगर आपको अभी कुछ टाइम समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी यूट्यूब चैनल को जिसमें न्यूज़पेपर एक्सप्लेन होता है, वेदर इट इज़ ओनली IAS, DNS, आप ये सब देख सकते हैं. व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग फॉर GS एंड ऑप्शनल. अगर आपके पास 1 year का टाइम है तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका बेसिक रिसोर्स मटेरियल कवर हो चुका है तो स्टार्ट राइटिंग एटलीस्ट 2 to 3 आंसर्स. और PYQs आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम की सेलेक्टिव रीडिंग करिए नहीं. फॉर प्रीलिम्स आपको कंप्लीट रीडिंग करनी पड़ती है. टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता तो आप अपना टाइम टेबल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिए. रेदर देन टाइम टेबल आप अपने टारगेट्स डिफाइन कीजिए कि आपको आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और बिफोर गोइंग टू बेड आप टिक मार्क कीजिए सो दैट यू फील अ सेटिस्फैक्शन कि आपने एटलीस्ट 80% टारगेट्स मैच करें. मैम हाउ टू रीड NCERTs. यू रीड, दीज आर वेरी सिंपल टेक्स्ट. तो
आई थिंक यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी अवेलेबल होंगी एनसीईआरटी एक्सप्लेन वाली, वो आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ और। मैम व्हाट अबाउट एनसीईआरटीज़? आई रेड एनसीईआरटीज़ ऑफ ओनली 11th-12th, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो बीए प्रोग्राम है पॉलिटिकल साइंस में, तो मैंने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इसको अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है, तो मुझे 6th to 10th की ज़रूरत नहीं पड़ी एनसीईआरटीज़ की। अगर आपका बिल्कुल टच छूट गया है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं। गुड लक, थैंक यू सो मच सत्या। व्हाट अबाउट दी आंसर? मैम अब से 2024 के लिए बिगनिंग करके प्रिपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, आपके पास 1 साल का टाइम है। आप अगर आप उस टाइम के लिए अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करेंगे तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैम वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम बागेश्वर, इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। मैम हिस्ट्री के लिए डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं क्या? आप हिस्ट्री के लिए डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से, अगर आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ का है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का है या नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए। एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हो कि मैंने कोई किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई कोचिंग नहीं ली थी, कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं किया था। मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी अपनी ऑप्शनल की शुभ्रा रंजन आईएएस से, और अपने मेंस के लिए आई यूज्ड फोरम आईएएस का मेंस गाइडेंस प्रोग्राम। उसके अलावा मेरी और कोई भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ कोचिंग नहीं रही है। और कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये एक बहुत पर्सनलाइज्ड आई वुड से चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं, आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है, तो यू कैन गो फॉर कोचिंग। मुझे ऐसा नहीं लगा था पर्सनली। तो रिसोर्सेज अगर आप एक बार अपने डिफाइन कर लें तो उसके बाद थिंग्स बिकम ईजियर। मैम प्लीज क्रिएट टेलीग्राम चैनल। ओके, आई विल सी अबाउट इट। व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माई रिसोर्सेज। मंथली मैगजीन कौन सी? आप कोई भी कर सकते हैं, मैंने विजन की करी थी। मिस्टेक्स विच शुड बी अवॉइडेड इन यूपीएससी प्रिपरेशन? मिस्टेक्स ये हैं कि सबसे पहले तो आप अपने आप को जो है अपने रिसोर्सेज लिमिट रखिए। एक्स्ट्रा मार्केट में जो भी रिसोर्सेज आ रहे हैं सबके पीछे मत जाइए। उसके बाद विच कोचिंग इज़ गुड? आई एम सॉरी, आई हैव नो आइडिया अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। और रिसोर्सेज लिमिट रखिए। टाइम बाउंड मैनर में अपने टारगेट्स डिफाइन कीजिए और उसे कीजिए। PYQs को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। सिलेबस हमेशा आपकी डेस्क में होना चाहिए वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर, वाइल सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। PYQs, सिलेबस, लिमिटिंग द रिसोर्सेज, और एक पॉजिटिव ग्रुप में और पॉजिटिव सर्कल में आप रहेंगे तो इट्स वे बेटर। आई थिंक आई एम डन विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग हियर। हाउ टू बैलेंस फैमिली, फ्रेंड, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद स्टडी? See, you need to understand that right now your priority is your studies. Baki, you can, if you're living away from your family, you can give a call to your family any day, I mean every day. You can meet your friends sometimes. So that is how you balance it. If you are in a good friend circle, in a stable relationship, then I think they will balance you rather than you balancing anything. What about essay writing? I have already discussed essay writing. How to prepare science and tech discussed. If we fail in UPSC exam, the second option is, I think ये बहुत ही पर्सनल अगेन क्वेश्चन है कि आपका क्या बैकग्राउंड है और आपके पास कोई प्लान बी है या नहीं है। तो आई वुड से कि इनिशियली आपको फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर करना आपका गोल होना चाहिए। उसके बाद तो आई वुड से कि यू शुड कंसीडर अ प्लान बी। I think I'm done with almost everything now. I'll take a few more questions if possible, but it's already been an hour. It was really nice talking to you all, and thank you for having me. Thank you UPSC Time for having me, giving me this opportunity and this platform to connect with the fellow aspirants. ऑप्शनल सब्जेक्ट आई टोल्ड मेरा PSIR था। इफ़ यू वांट टू एक्सेस माय, और आई डू नॉट नो कि अगर ऑप्शनल
कॉपीज अपलोड हुई हैं, तो इफ़ एट ऑल दे विल बी इन द शुभ्रा रंजन IAS चैनल. So thank you so much everyone for your time, and I'll see about creating a Telegram channel, surely. And if at all you need any particular session, then I will be taking few sessions from Kaptan's channel, so you can be in touch there. And if at all I will upload my notes, then again in Kaptan's channel itself. So thank you everyone for having me, and it's been a lovely time talking to you all. All the very best, all of you. Please do not give up, and you are in the right path. This exam is worth going for, and it will change your life and your entire persona in a matter of a year and two. So you are in the right path. Go ahead. All the very best. Thank you so much.